Hello friends, I'm Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bandara, Maharashtra. Today we are going to discuss a letter by Hazlitt to his son, a wonderful letter written by a father to his son. How does William Hazlitt deals with his son? How does he guides him? And what is the important role of a father in the life of a son? This letter underlines these all things. Let us try to understand what are the responsibilities of the new generation in the modern era. How should we behave in the society? And what are our moral and other responsibilities to be performed? Hazlitt as a father guides in a wonderful way and try to maintain a rapport with his son. William Hazlitt is an important figure of the 18th, post-18th and early 19th century. Born in 1778 and died in 1830, was an English critic and essayist. Other than his essays, his best critical work is the three courses of the lectures on the English poet, on the English comic writers, and on the dramatic literature of the age of Queen Elizabeth. He was rather quarrelsome by nature. स्वभाव से विलियम हाजलिट थोड़े से झगड़ालू किस्म के चिड़चिड़े स्वभाव के थे, which accounts for his unhappy relations with his wife and friends. और नतीजा ये हुआ कि पत्नी के साथ और दोस्तों के साथ संबंध कुछ मधुर नहीं रहे. Perhaps he recognized this character in his son and wanted him to develop more pleasant personality. शायद अपने स्वभाव की कुछ परछाइयाँ वो अपने पुत्र में, अपने बच्चे में भी देखते हैं, इसलिए उसे मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि वो एक अच्छे पर्सनालिटी का निर्माण करे और एक सुशोभनीय वर्तनीय व्यक्ति दुनिया में बने. All young people can learn a lesson from Hazlitt's advice to his son. Hazlitt भले ही इस पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को गाइड कर रहे हैं, पर दुनिया के हर नौजवान को, हर युवक को इस पत्र को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए ताकि वो अपने आप को आने वाले समय के लिए अच्छे तरीके से ढाल सके. Hazlitt writes a letter in epistolary style to his son after his son returns from the school, complaining about his fellow students and expressing disagreeable opinions of them. Epistolary style में विलियम हाजलिट ये लेटर लिखते हैं जो बाद में एक नॉवेल का रूप ले लेते हैं और बच्चे को उस समय समझाने की कोशिश करते जब वो स्कूल से वापस आ जाता है और शिकायतें करने लगता है और बच्चे बाकी स्कूल के जैसे डिसएग्रीएबल ओपिनियन से उनके साथ मैच नहीं करते, उनको मार्गदर्शन करने की हाजलिट कोशिश करते हैं. The letter was written in the hope that his son would not grow with narrow-mindedness. इस उम्मीद से इस पत्र को लिखा गया था कि बच्चा एक संकुचित विचारों वाला व्यक्ति ना बने, but would rather mature into a well-rounded gentleman, एक अच्छे व्यक्तित्व का, ऑल-राउंड व्यक्तित्व का निर्माण हो. इसलिए हाजलिट ने इस खत को लिखा है. Capable of accepting his situation in his life, ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी के हर घटना को, हर घड़ी को स्वीकार कर सके, and hopeful to help and respect others, और औरों की मदद करे, लोगों का सम्मान करे, especially those who may not be fortunate as he is. शायद हो सकता है कि बाकी बच्चे इसकी तरह खुशकिस्मत ना हो, तो उनके बारे में भी बच्चों ने सोचना चाहिए. ऐसा हाजलिट इस मकसद से ये पत्र लिखते हैं. अपने बच्चों को कहते हैं, माय डियर लिटिल फेलो, यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल एंड मे कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड. तुम स्कूल में जा रहे हो
और अभी स्कूल में सेटल होने की कोशिश करोगे और समझ लो कि दुनिया के रंगमंच पर तुम पहली बार ये प्रवेश कर रहे हो. As my health is so indifferent and I may not be with you long. शायद अपनी गिरती हुई तबीयत के कारण हाजलिट ये जान लेते हैं कि वो ज़्यादा दिनों तक शायद अपने बच्चे के साथ रह नहीं पाएंगे, इसलिए वो अपनी बात को पत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं. I may not be with you long and I wish to leave you some advice for your conduct in life. और जिंदगी में बर्ताव के लिए कुछ सुझाव वो छोड़कर जाना चाहते हैं. Both that it may be of use to you and as something to remember me by. कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हारे लिए जिंदगी में कामयाबी के लिए काम में आएगी और कुछ ऐसी चीजें जो मुझे भी जरूरत है. I may at least be able to caution you against my own errors if nothing else. अगर मैं इस अपने संवाद से, इस पत्र से अगर कुछ कह भी नहीं पाया तो एक बात तो मैं यकीनन बता सकता हूँ कि मैं तुम्हें कम से कम आगाह कर सकता हूँ उन गलतियों के बारे में जो मेरे साथ घटित हुई. मैं नहीं चाहता कि इन गलतियों को तुम दोहराओ. As we went along to your new place of destination, you often repeated that they were a set of stupid, disagreeable people, meaning the people at the school. मुझे याद है जब तुम बात कर रहे थे, जब हमने तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक पहुंचाया, तब तुम बहुत सारी शिकायतें लेकर आए थे और ये सारी शिकायतें मूर्खता भरी थी. तुम कह रहे थे कि डिसएग्रीएबल पीपल, जिनके साथ तुम्हारे मतभेद होते हैं, ऐसे लोग हैं वहां पर, ऐसे ही लोग स्कूल में भरे हुए हैं. यू वेर टू ब्लेम इन दिस, और तुम सभी को दोष देते हो. इट इज गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट. कम से कम अपने साथ बहुत बेहतर होगा, अच्छा होगा, इसकी तो उम्मीद हमने करनी चाहिए. ऑलवेज माई डियर बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल यू फाइंड देम द कॉन्ट्ररी. एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब तक परिस्थितियां विपरीत ना हो, परिस्थितियां तुम्हारे साथ नहीं हो सकती. एंड इवन देन, इंस्टेड ऑफ इरिटेटिंग योरसेल्फ अगेंस्ट देम, एंडेवर टू पुट अप विद देम एज वेल एज यू कैन. इन परिस्थितियों के कारण किसी को दोष देने के बजाय तुम परिस्थिति के विपरीत स्थिति को समझना और चिढ़ने के बजाय इस बात का पूरा भरसक प्रयास करना कि तुम उनके जैसे परिस्थितियों के साथ एडजस्ट कर सको. यू शुड स्टे देयर विद देम ऑल इन सच अ कंडीशन एंड इफ यू कैन नॉट अल्टर देम. अगर तुम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते तो परिस्थितियों के साथ तुम्हें जीने की आदत अपने आप को डाल देनी चाहिए. अगर हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते तो अपनी मन की स्थिति को कम से कम बदल सकते हैं. You said you were sure you should not like the school where you were going. तुम्हें तो पहले से ये पता था कि तुम्हें वो स्कूल पसंद ही नहीं आएगा जिस स्कूल में तुम जाने वाले थे. This was wrong. ये गलत था. What you meant was that you didn't like to leave home. तुम जब ये बोल रहे थे कि स्कूल तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं समझ गया कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो. तुम घर नहीं छोड़ना चाहते थे. But you could not tell whether you should like to the school or not. तुम ये कभी बता नहीं सके कि स्कूल तुम्हें पसंद आया कि नहीं आया. घर तुम्हें छोड़ना नहीं था till you had given it a trial. Otherwise, you're lying that you should like it. It was determined that you would not like it. शायद तुम अपने आप पहले ही तय कर चुके थे कि स्कूल पसंद ही नहीं आएगा. स्कूल में जब तक तुम अनुभव नहीं लोगे, जब तक इस बात को समझोगे नहीं, कैसे पता चलेगा स्कूल अच्छा है कि बुरा है. नेवर एंटिसिपेट इविल्स. हमारे साथ सिर्फ बुरा ही होगा ऐसा भी सोचकर हमें नहीं चलना चाहिए. और बिकॉज यू कैनॉट हाउ थिंग्स एग्जैक्टली एज यू विश. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हाजलिट कहते हैं. हर जगह, हर समय परिस्थितियां हमारे उम्मीद के हिसाब से नहीं होती. हो सकता है हमारे उम्मीद से विपरीत हो. एज यू विश मेक देम आउट वर्स देन दे आर. अगर परिस्थितियां खराब है और तुम अगर उसे एडजस्ट नहीं करते तो शायद परिस्थिति और बदतर लगने लगेगी.
through more spite and willfulness. और ये हम अपनी मर्जी से करते हैं. हमारे अंदर अगर बुरी इच्छाएं भरी हुई है, बुरे विचार भरे हुए हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें बुरी ही लगेगी. Towards universal brotherhood, you seemed at first to take no notice of your school fellows. अब तुम जब विश्व की बात करते हो, विश्व के भाईचारे की बात करते हो, तो तुमने अपने आजू बाजू में जो तुम्हारे कलीग्स है, दोस्त है, स्कूल फेलोज है, उन्हें देखना चाहिए. और टू सेट योरसेल्फ अगेंस्ट देम, या तो तुम उनके साथ हो लो या पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाओ. बिकॉज दे वर स्ट्रेंजर्स टू यू. अब ये तो सब दोस्त जिनसे तुम मिले हो स्कूल में, वो तो अपरिचित थे. दे न्यू एज लिटिल ऑफ यू एज यू डीड ऑफ देम. जैसे तुम्हें उनके बारे में पता नहीं था, वैसे उन्हें भी तुम्हारे बारे में पता नहीं था. दिस वुड हैव बीन अ रीजन फॉर देयर कीपिंग अलोव फ्रॉम यू. और शायद ये वजह हो सकती है कि तुम उनसे दूर रहे और वो तुमसे दूर रहे. यू एज वेल विच यू वुड हैव फेल्ट एज अ हार्डशिप. और शायद इसी से तुम्हें तकलीफ हो रही होगी. लर्न नेवर टू कंसीव और a prejudice against other because you know nothing of them. ये एक और इम्पॉर्टेंट उपदेश हाजलिट यहाँ पर करते हैं. Learn never to conceive. कभी इस बात की कल्पना मत करना पूर्वाग्रह दूषित होकर against others because you know nothing of them. हमें दूसरों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी वो लोग बुरे हैं, ऐसा मानना ठीक नहीं है. It is bad reasoning. ये कोई तर्क सही नहीं है. And makes enemies of the half the world. और अगर ऐसा ही सोचोगे औरों के बारे में, तो शायद आधी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, दुश्मन लगने लगेगी. Do not think ill of them till they behave ill to you. जब तक लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, तब तक उनके बारे में तुम बुरा मत सोचो. And then try to avoid the faults which you see in them. और बाद में प्रयास करो, अथक प्रयास करो उन सारी बुराइयों को हटाने का, उन सारे दोषों को हटाने का जो उनके अंदर तुम्हें दिखते हैं. This will disarm their hostility sooner than pique or resentment or complaint. और इससे तुम सीख जाओगे बहुत सारी चीजें और उनका विरोध भी कम हो जाएगा, तुम चिढ़ना भी कम करोगे और तुम्हारा गुस्सा भी और शिकायतें भी कम होने लगेगी. I thought you were disposed to criticize the dress of some of the boys as not good as your own. शायद तुम इस बात के लिए तैयार नहीं थे और लोगों के ड्रेसेस को देखकर, कपड़ों के देखकर तुम उनका तिरस्कार करते. Never despise anyone for anything that he cannot help, least of all. इस बात से लोगों का तिरस्कार मत करना. फॉर हिज पॉवर्टी. शायद अपने गरीब परिस्थितियों के कारण लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, पर यह कोई तिरस्कार की वजह नहीं हो सकती. आई वुड विश यू टू कीप अप अपीयरेंसेस योरसेल्फ एज अ डिफेंस अगेंस्ट द आइडल स्नीयर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू योरसेल्फ अपॉन देम. लोगों का मजाक नहीं उड़ाना और उनके साथ रहते समय इस बात का ध्यान रखना कि तुम अपने आप को ज़्यादा महत्व तो नहीं दे रहे हो, दूसरों को कम तो नहीं आंक रहे. आई होप यू विल नीदर बी द ड्यूप नॉर विक्टिम ऑफ द वल्गर प्रेजुडिसेस. मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक चीटर तो नहीं बनोगे, ड्यूप तो नहीं बनोगे, नॉर विक्टिम ऑफ वल्गर. पर लोगों को चीट नहीं करना है, साथ ही साथ हमें किसी पूर्वाग्रह से दूषित होकर अपने चरित्र को भी खराब नहीं करना है. इंस्टेड ऑफ सेइंग नेवर डिस्पाइज एनीवन for anything that he cannot help, I might have said never despise anyone at all. जब मैं कह रहा हूँ कि किसी का तिरस्कार मत करो, इसका मतलब होता है किसी का भी तिरस्कार मत करो. For contempt implies a trying for. और जब हम किसी का तिरस्कार करते हैं, हेट्रेड करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की जीत छुपी नहीं होती. And pleasure in the ill of another. और दूसरों को तकलीफ देने में खुशी अगर मिलती है तो इससे कोई जीत हासिल नहीं होती. इट मीन्स यू आर ग्लैड एंड कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ ऑन द फेलिंग ऑफ द मिसफॉर्चून्स. तुम अपने आप को मुबारकबाद दो, इस प्रकार से तुम अपने आप को बचा पाओगे. यू कंप्लेन सिंस दैट द बॉयज लाफ एट यू एंड डू नॉट केयर अबाउट यू. तुम बार बार शिकायत करते हो कि बच्चे तुम्हारी तरफ देखते हैं
तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, एंड दैट यू आर नॉट ट्रीटेड एज यू आर एट होम। और जब घर के लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करते थे वैसा व्यवहार स्कूल में नहीं होता। माई डियर, दैट इज वन चीफ रीजन फॉर यू बीइंग सेंट टू स्कूल। और यही एक वजह है मेरे बेटे कि मैंने आपको स्कूल भेजा है। टू इन्योर योर बेट टाइम्स, to the unavoidable rubs and uncertain reception you may meet with in life। और इसलिए स्कूल भेजे गए हो कि दुनिया के बाहर जाकर पता चलेगा कि दुनिया कैसे होती है, अपने आप को उसमें ढालना और लोगों के साथ अपने आप को तालमेल बिठाकर व्यवहार करना, यही तो सीखना है स्कूल में, ताकि आगे की जिंदगी में तकलीफ ना हो। जरूरी नहीं है कि वहाँ या दुनिया में हर लोग आपके विचारों से मेल खाने वाले ही मिलेंगे। आपको हर तरह के विचारों के लोगों के साथ रहना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। यू कैनॉट ऑलवेज बी विथ मी, और तुम हमेशा मेरे साथ तो रह नहीं सकते। एंड परहैप्स इट इज वेल दैट यू कैनॉट, और अच्छा है कि तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अगर तुम मेरे ऊपर आश्रित रहोगे तो अपनी जिंदगी जी नहीं पाओगे। बट यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट others to show the same concern about you as I should। जिस प्रकार की चिंता देखभाल के लिए, तुम्हारे वेलबींग के लिए मैं दिखाता हूँ, हर एक व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में वैसा ही सोचना चाहिए, ऐसी उम्मीद करना ठीक नहीं। You have now got among other boys who are your equals or bigger and stronger than yourselves। अब तुम ऐसे बच्चों के साथ स्कूल में हो जो या तो तुम्हारे बराबर के हैं, तुमसे बड़े हैं, या तुमसे शक्तिशाली है, एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड टू बिसाइड ह्यूमरिंग योर whims एंड फैंसीज। तुम्हारी कल्पनाओं के आधार पर लोग बिहेव नहीं करेंगे, एंड यू फील दिस इज अ रिपल्स ऑफ पीस ऑफ इंजस्टिस। और हर एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ हमारे जैसा ही बर्ताव करना चाहिए, ऐसी अगर उम्मीद है तो तुम गलत हो। But the first lesson to learn is that there are other people in the world besides yourself। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा भी लोग हैं, और ये बात हमेशा ध्यान में रखना भी चाहिए कि हमारे अलावा भी लोग दुनिया में हैं। There are a number of boys in schools where you are whose amusement and pursuits are and ought to be as much consequences to them as yours can be to you, and to which therefore you must give way in your turn। अपने साथियों के साथ रहते से रहते हम मनोरंजन का कारण किसी के लिए बन सकते हैं, बनना भी चाहिए, और लोगों को हमसे अगर एंटरटेनमेंट मिलता है तो मिलने दीजिए, एक बार हमारी भी बारी आएगी। द मोर heirs to childish self-importance you give yourself, you will only expose yourself to be the more thwarted and laughed at। अगर तुम अपने आप को स्पेशल समझते हो, औरों से अलग समझते हो, तो तुम अपने आप को एक्सपोज कर पाओगे, फिर अपसेट हो जाओगे एक आध दिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे इस प्रकार से। रिमेंबर ऑलवेज दैट यू आर बट वन अमंग अदर्स। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो इतने सारे बच्चे हैं उन बहुत सारे बच्चों में तुम एक बच्चे हो, एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी। और तुम अपने स्थान को सही या गलत साबित कर सकते हो। इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज्ड। अपने घर में, पिता के घर में रहते हो तो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स एट एवरी टर्न। और जब बाहर की दुनिया में जाओगे तो बहुत सारी स्पर्धाओं से, बहुत सारे कॉम्पिटिटर से, स्पर्धकों से तुम्हारा आमना सामना होगा। यू आर नॉट बॉर्न अ किंग्स सन, और तुम कोई राजा के बेटे तो नहीं हो, टू डिस्ट्रॉय एंड डिक्टेट टू मिलियंस, ताकि हर चीज को तहस नहस करो और लोगों को आज्ञा दो। You can only expect to share their fate or settle your differences amicably with them। या तो उनके किस्मत के साथ जो हो रहा है उसे शेयर करो, या फिर अपने आप को इन सारी विपरीत परिस्थितियों में हंसी खुशी से एडजस्ट करो। You already find it so at school, and I wish you to be reconciled to your situation as soon as with as little pain as you can। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने जल्दी हो सके तुम अपने आप को इस वातावरण में ढाल दो, और जितने जल्दी हो सके बिना किसी तकलीफ से इस परिस्थिति से तुम जुड़ जाओ और अपने आप को अच्छा नागरिक साबित करो। योर अफेक्शनेट फादर
विलियम हैज़लिट। इस प्रकार से विलियम हैज़लिट अपने बेटे को मार्गदर्शन करते हैं जिंदगी के लिए। ये सिर्फ हैज़लिट ने अपने बेटे को किया हुआ मार्गदर्शन नहीं है, पर ये हर एक पिता का उपदेश है अपने बच्चों के लिए, ताकि वो इससे सीख ले। Thank you very much for watching this video and all the best for your future career. Thank you very much.